Thank you. Thank you so much, Sonali Bara ma'am, for giving us time of your busy schedule. So Sonali Bara ma'am is not actually new to our institutions. Everyone knows her, but unfortunately, the new students who have joined us today, they don't know. So I would like to say about Sonali Bara ma'am, those who are not aware of her. So she was she's master in computer application. She is also globally certified by Microsoft in system engineer, Cisco certified network associates. She was engaged with Jetkin hardwares and network institutions for many years. And more importantly, she was a former, assistant professor of our department only. It was very much good privilege for me to work with her for 1 year. So those students, maybe sixth term or fifth term, they know about Roshan's best. So ma'am was there till Roshan, student when Roshan was first sem. Till then, ma'am was there. After that, she left and started serving for government organization. Before you start, I would like to request Pallavi ma'am to share few words. Ma'am was actually not well. I have already informed every student, so ma'am is going through a lot. But still, ma'am has joined here today. Thank you so much, ma'am. Over to you. You can share some words. Yeah. Good morning, students. Good morning, colleagues, and good morning, everybody in this platform. It's a very good moment that that you could be here with us and sharing with my students all the informations. Related to Stack and Q. Generally, had been a very hardworking and dedicated faculty. She was working with us with a lot of certification and all that. And during that time, she was very dedicated, and I really miss her a lot. Okay, and she, gelled together with the entire faculties and students of our department, actually. And so generally the platform is yours. So you can share, you can start your session. And thank you, Pallavi. Yeah, thank you, ma'am. Now, Chandani, ma'am, you can share yourself if you want. Yeah. Thank you. Now, students, I am going to start this data structure. Now, सबको तो पता ही है शायद मैक्सिमम स्टूडेंट सेकेंड सेम में डाटा स्ट्रक्चर सबको मिल ही चुका है. आई थिंक स्टैक एंड क्यू तो सबको मिला हुआ है शायद. रिमेम्बर student please interact with me. Okay, so what is data structure actually? कोई कुछ बताएगा क्या है? मैम, डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. yes. तो अभी देखो, हम अगर इंफॉर्मेशन जो डाटा है हमारे सिस्टम में स्कैटर्ड वे में रखते हैं तो उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होता है. जैसे कि अगर आप अपने रूम में सामान स्कैटर्ड वे में रखोगे, जहां तहां रख दोगे, तुम्हें एक बुक ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, या कुछ भी सामान हो उसको फाइंड आउट करने में टाइम लगता है. तो वैसे ही हमारे जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं उसको अच्छी तरह, मतलब कम टाइम में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मिला होगा, तो टाइम जितना कम हो सके उस कम टाइम में हमें इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालने के लिए डाटा हम अरेंज ऑर्डर में रखते हैं. तो ये जो अरेंजमेंट है डाटा स्टोर करने के लिए, तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, डाटा स्ट्रक्चर. तो अभी यहाँ पे हमें डाटा ऑर्गेनाइज मैनर में रखने से हमें डाटा एफिशिएंटली यूज करने को मिलते हैं. तो अगर हम डाटा स्टोर करें डाटा स्ट्रक्चर में, एक है वे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, मतलब 1 2 3 4 सीक्वेंस में स्टोर होगा, और एक हो गया आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मतलब नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्टैक, तो वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर.
तो स्टैक है क्या? स्टैक हमको, जैसे कि मेरे ये इमेज जो है टावर ऑफ हैनोई, देखा होगा शायद, ये गेम खेला है किसी ने पहले, कि ये स्टैंड से यही वाला फॉर्मेट जाके दूसरे एक स्टैंड में हमें रखना है और इसी ऑर्डर में ही रखना है। तो ये जो है हमारे एक स्टैक है जहाँ पे हमें 3 ऑब्जेक्ट रखा है हमने, और तीनों ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्या? स्टैक। तो ये जो स्टैक है हमारे लिनियर डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि डाटा 1 by 1 एक के ऊपर एक रखा गया है। इस स्टैक में हम जब इंफॉर्मेशन मतलब जो भी रख रहे हैं उसको हम जो लास्ट में डालेंगे उसको ही पहले निकालना पड़ेगा। अभी जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर मैंने इमेज जो रखा है इसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसमें जो ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है उसको निकालने से पहले मुझे पहले रेड, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू ऑब्जेक्ट हम निकाल सकते हैं। ये जो स्टैक हमारा कॉन्सेप्ट है, ये डाटा जो पहले इंसर्ट होगा उसको लास्ट में आउट कर सकते हैं। तो स्टैक यूज कब होता है? जब आप प्रोग्राम करते हो कुछ, वो प्रोग्राम जब रन करोगे तो बफर मेमोरी मतलब टेम्पोररी स्टोरेज, जो तुम्हारा प्रोग्राम रन करोगे उस टाइम पे जो वेरिएबल्स या डाटा होगा उसको स्टोर करने के लिए ये स्टैक मेथड हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो लास्ट में एंटर होगा वो पहले निकलेगा और जो पहले एंटर होंगे वो लास्ट में निकलेंगे। तो ये जो स्टैक है वो यूज करते हैं क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो हमारा लास्ट इन कौन सा हुआ था? ये रेड ऑब्जेक्ट, तो ये ही आउट होंगे पहले। इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना और एक है ऑब्जेक्ट को रिमूव करना। तो ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने वाला प्रोसेस हो गया, मतलब डाटा जब हम इंसर्ट करेंगे वो प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या? पुश। और जब डाटा रिमूव किया जाएगा उस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या? पॉप। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अगर तुमको ब्लू वाला इंफॉर्मेशन मतलब स्टैक ऑब्जेक्ट हमें एक्सेस करना है, पहले हमें रेड एंड ग्रीन ये दोनों निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट हम ब्लू ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी स्टैक जो मैंने बोला उसमें एक ऑपरेशन होता है पुश, जिसमें होता है क्या? ऐड और इंसर्ट कर सकते हैं हम कोई इंफॉर्मेशन या डाटा को। तो ये स्टैक सपोज पहले हमारा खाली था, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट डाला या डाटा इंफॉर्मेशन दिया, उसमें इंफॉर्मेशन क्या आया? 10। ये जो डाटा है ये स्टैक का पहला ऑब्जेक्ट मतलब डाटा है, तो इसको हम टॉप एलिमेंट बोल सकते हैं। उसके बाद हम और एक एलिमेंट पुश करेंगे, तो पुश करने पे हम यहाँ पे डाल रहे हैं क्या? 20। तो 20 स्टैक का टॉप एलिमेंट हो गया, मतलब एक के ऊपर एक हम डालते जा रहे हैं और जो ऊपर मतलब टॉप एलिमेंट है वही पहले रिमूव भी होंगे। अभी पुश से हमने इंफॉर्मेशन डाटा इंसर्ट किया स्टैक के अंदर, और अभी पॉप से हम क्या करेंगे? डाटा रिमूव करेंगे स्टैक से। तो अभी पॉप के थ्रू हमने एक जो पहले लास्ट में डाला था हमने 20, उसको हमने पॉप आउट कर दिया, तो हमारा कौन सा रहा? अभी 10। फिर हमने पॉप किया 10, तो अभी हमारा स्टैक हो गया क्या? एम्प्टी। अभी देखो ये एक वर्किंग प्रोसेस है स्टैक का। पहले हम कुछ देखते हैं बोर्ड में। एक एम्प्टी स्टैक है, इस स्टैक में फिलहाल कोई एलिमेंट है नहीं। अभी हम अगर इसमें एलिमेंट डाले तो कौन सा इंडेक्स में जाएगा? मतलब 0, 1, 2, 3 किस में ये स्टोर होंगे?
0। तो अगर हम इसको 0 में स्टोर कर रहे हैं तो हमारा टॉप एलिमेंट हो गया। तो ये यहाँ पे ये पहला स्टैक हमारा एम्प्टी था, उसमें हमने डाला 10, तो हमारा टॉप एलिमेंट 0 इंडेक्स में स्टोर हुआ। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं और एक एलिमेंट डाल दिया 20, तो टॉप एलिमेंट अभी हमारा 20 है। नेक्स्ट हमने 30 डाला तो 30 हो गया हमारा टॉप एलिमेंट। उसके बाद हमने 40 डाल दिया तो ये हो गया हमारा 40 मतलब टॉप एलिमेंट। तो अभी क्या हम ये जो मैंने एरे लिया है, एरे तो सबको समझ में आता है शायद ना? यस मैम। हाँ, तो अभी मैंने जो एरे लिया है इसमें, ये एरे में हम और एलिमेंट डाल सकते हैं क्या? ये जो एरे है मेरा वो है वो मतलब स्टैक एरे इंडेक्स No, no. है 3, उसमें हम और एलिमेंट नहीं डाल सकते। तो अभी इसमें अगर हमें और एलिमेंट हम डालने जाए तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। तो जैसे हम एक ग्लास में पानी डाल के उसको फिलअप कर दिया है हमने, उसमें और अगर पानी हम डालने जाए तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें कोई एलिमेंट अगर हमें पहले डालना है तो हमें देखना है कि ये क्या स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन में है, क्या ऑलरेडी स्टैक फुल है, वो चेक करना होता है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। प्रोग्रामिंग तो सबने किया ही है सी में। देखो मैं यहाँ पे मैं प्रोग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है, नाम है उसका टॉप। ओके, टॉप बोल के एक मैंने वेरिएबल लिया है ये वाला, और ये टॉप का वैल्यू मैंने रखा है -1। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि अभी मैंने टॉप लिख दिया, अभी ये टॉप बोल के कुछ क्रिएट होगा क्या? वेरिएबल जब हम लिखते हैं उससे सामने कुछ लिखते हैं क्या? ये क्या आइडेंटिफाई करता है? डेटा टाइप है। डेटा टाइप। तो ये टॉप बोल के मेमोरी में हमारा क्या होगा, एक लोकेशन क्रिएट होंगे टॉप। मेरा हैंडराइटिंग खराब है। हाँ, तो अभी ये टॉप क्या स्टोर करेंगे, कौन सा डाटा टाइप? इंटीजर। अभी मैं इसके अंदर सी स्टोर कर सकती हूँ क्या? नो मैम। नहीं। ओके, अगर मैं इसमें जैसे कि ये वाला देख रहे हो शायद तुम लोग, स्टैक एरे, ये दिखाई पड़ रहा है सबको? तो स्टैक एरे जो मैंने लिखा है मैक्स, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, मैक्स मतलब 4। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक स्टैक एरे क्रिएट होंगे यहाँ जिसका साइज होगा 4, मतलब 0 1 2 3। तो यहाँ पे मैं कितना वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ? अगर मैं इसमें रख देती हूँ 10, उसके बाद 20 30, ये तीनों अलग अलग करके मैं एक टॉप के अंदर स्टोर कर सकती हूँ क्या? क्वेश्चन समझ में आया? इन टॉप बोल के मैंने एक मेमोरी स्पेस क्रिएट किया है, उसके अंदर मैं 10 20 30 40 ऐसे अलग अलग करके स्टोर कर सकती हूँ क्या? नहीं मैम। नहीं। लेकिन क्या मैं इसमें स्टोर कर सकती हूँ लोग? हाँ मैम। हाँ, तो अभी देखो ये क्या हो गया, हमारा एक आसाम टाइप का घर हो गया। मतलब मैं सिर्फ एक ही फैमिली हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ये हो गया हमारा क्या, एक बिल्डिंग जिसमें हम बहुत सारा फैमिली रह सकते हैं। तो लोकेशन एक ही है, लेकिन इसके इंडेक्स से मतलब उसका फ्लोर नंबर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 0 में ये रहेगा, 1 में ये रहेंगे। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे 2 वेरिएबल मैंने लिया है टॉप, और एक लिया है स्टैक एरे।
जिसका साइज है 4। सो हमारा जो ये पुश फंक्शन है, यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आया है शायद, आई थिंक। यस मैम। ओके, तो अभी हम जो ये प्रोग्राम ले रहे हैं, ये आपका पुश फंक्शन है। पुश से क्या होता है? इंफॉर्मेशन स्टैक के अंदर इंसर्ट होगा। ओके, तो यहाँ हमने एक फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम जो भी रखो, आप लोगों का मर्जी। देन ये हमारा एक वेरिएबल है, हमने लिया है आइटम। अभी हमें देखना क्या है, अब इक्वल टू मैक्स -1, मतलब टॉप जो हमारा वेरिएबल है वो मैक्स -1। मैक्स मतलब मैंने बताया था अभी मैक्स का वैल्यू हो गया क्या? 4। मैक्स -1 मतलब 4 - 1 क्या होगा? 3। टॉप और मैक्स -1 अगर इक्वल है मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा मैक्स का साइज, मैक्स मतलब 4 था, 4 - 1 मतलब 3। टॉप कौन सा एलिमेंट मतलब कौन सा इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है? 3rd नंबर इंडेक्स। तो टॉप और मैक्स -1 इक्वल हो गए। तो क्या इसमें अभी हम कोई और एलिमेंट डाल पाएंगे? नहीं डाल सकते। तो ये क्या होगा? स्टैक ओवरफ्लो। मतलब हमारा जो एरे का साइज है उसके लास्ट इंडेक्स तक टॉप पहुंच चुका है, मतलब हमारा और इसमें एलिमेंट डालने की जगह नहीं है। तो ये तुमको दिखाएगा क्या कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया। टॉप के अंदर फिलहाल क्या है? 3। सो अभी देखो, हम लोग ने एक वेरिएबल लिया है टॉप, क्योंकि स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। स्टैक हम जो ले रहे हैं, स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे से, नहीं तो लिंक लिस्ट से। तो अभी मैं एरे का एग्जांपल ही ले रही हूँ। तो अभी ये जो एरे है, इस एरे का साइज है 4। मतलब हम 0 इंडेक्स से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, 0 1 2 3। तो 4 ब्लॉक्स है जिसमें हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। और टॉप एक वेरिएबल है जिसमें ये इंडेक्स नंबर स्टोर होगा, मतलब कौन सा इंडेक्स में अभी टॉप एलिमेंट है। तो अभी इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए टॉप को हमने जस्ट इनिशियलाइज करके रखा है -1 के थ्रू। अगर हम टॉप को कोई इनिशियलाइजेशन नहीं देंगे तो ये गार्बेज वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इसीलिए फिलहाल इसको -1 रखा है। अभी स्टैक पूरा एम्प्टी है। इसमें हम अभी कोई एलिमेंट हमें स्टोर करना है, उससे पहले हमें इस टॉप में जो है वैल्यू फिलहाल क्या है? -1। अभी टॉप को हम +1 कर देंगे, मतलब -1 + 1 तब क्या होगा? टॉप इक्वल टू 0। तो टॉप हमारा पहला इंडेक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसमें हमने ये जो हमारा एरे है इसमें हमारा टॉप 0 में डाल दिया है हमने 10। उसके बाद हम फिर से और एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो फिर टॉप का वैल्यू हम प्लस करेंगे। 0 + 1 1 आ गया, इसमें हम स्टोर कर रहे हैं 20। फिर हम टॉप का वैल्यू +1 करेंगे, 1 + 1 2 हो गए, तो उसमें आ गया 30। फिर हम टॉप का वैल्यू +1 करेंगे, तो 2 + 1 हो गए 3, और इसमें चला गया 40। तो हमारा एरे जो है वो फुल हो चुका है। टॉप हमारे लास्ट इंडेक्स को
पॉइंट कर रहा है मतलब 3, और हमारा एरे का साइज भी हो चुका है, तो इसके अंदर फिर कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं होंगे। को प्लस करते जाते हैं, उसके साथ हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो अभी जब हम रिमूव करेंगे यहाँ से एलिमेंट, तो आपका वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं अगर एलिमेंट इंसर्ट कर रही हूँ तो मैं इस टॉप को +1 +1 +1 +1 कर रही हूँ, उसके साथ एक एक एलिमेंट इंसर्ट होता जा रहा है। जब हम यहाँ से एलिमेंट निकाल लेंगे, 40 निकाल दिया, 30 निकाल दिया, तो ये टॉप का वैल्यू हम प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे? माइनस में माइनस। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो था पुश, अभी हम करेंगे पॉप। अभी पॉप करने से पहले भी हमें देखना है कि स्टैक में कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर स्टैक में एलिमेंट ही नहीं है तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो। तो हमें देखना है कि कंडीशन अंडरफ्लो है क्या, स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें से रिमूव होगा नहीं। और अगर एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, अभी टॉप का वैल्यू करेंगे -1 करने से ये फिर इन एक एक एलिमेंट को डिलीट करते जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे टॉप हो गया 3, टॉप लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, कर देगा मतलब इसको पॉप कर देगा क्या, ये 40। फिर हम टॉप का वैल्यू -1 कर रहे हैं, फिर ये 30 को रिमूव कर देंगे, फिर टॉप का वैल्यू -1 कर रहे हैं, 30 को रिमूव कर रहे हैं, फिर -1 कर रहे हैं, तो ये 10 तक पहुंच गया, 1 कर दिया तो लास्ट एलिमेंट भी डिलीट हो गए। टॉप का वैल्यू हो जाएगा तब टॉप इक्वल टू -1। तो अभी पुश में क्या हो रहा था, हम लोग एक आइटम ले रहे थे, सपोज आइटम बोल के एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने 10 दिया इंफॉर्मेशन। सो अभी यहाँ पे मैं एक आइटम ले रही हूँ, यहाँ पे मुझे मैंने सपोज 10 लिखा है, तो आइटम वेरिएबल आइटम बोल के जो लोकेशन है उसमें स्टोर होगा 10। अभी ये तो कंडीशन मैंने समझा दिया। अभी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगर ये फुल नहीं है, ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा आइटम हमें स्टैक में डालना है वो हम डालेंगे। तो मैंने स्कैनफ करके वो वेरिएबल आइटम के अंदर 10 डाल दिया सपोज। तो अभी टॉप इक्वल टू टॉप +1 है। टॉप हमने देखा था अगर स्टैक एम्प्टी रहता है तो टॉप का वैल्यू -1 है। अभी हम पहले टॉप का वैल्यू इंक्रीज करेंगे। अभी टॉप तो -1 में है, तो इसको इंक्रीज करने से मतलब +1 कर देने से ये हो जाएगा क्या, 0। टॉप हो गया 0, और इस स्टैक के अंदर ये टॉप क्या समझा रहा है, 0 इंडेक्स ना, ये हो गया एरे का नाम, स्टैक एरे। ये टॉप हो गया, टॉप का वैल्यू हमने क्या +1 कर दिया तो हो गया 0। तो अभी स्टैक एरे 0 के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, 10। मतलब हमारा ये जो एरे है, इस एरे के टॉप मतलब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 0 नंबर इंडेक्स, और उसमें हम क्या डाल रहे हैं, 10। तो ये था हमारा पुश ऑपरेशन। तो फंक्शन है, तो अभी इसमें हम देख रहे हैं क्या, पहले टॉप इक्वल टू -1 मतलब स्टैक में ऑलरेडी कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो टॉप का वैल्यू तो -1 ही रहेगा।
तो मतलब ये हो गया अंडरफ्लो। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो आप फिलहाल किसको पॉइंट कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर 0 को। तो आप पॉइंट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 0 मतलब 40। तो इस लाइन से हमें क्या दिखाई पड़ेगा, स्टैक एरे टॉप में है इंडेक्स इंडेक्स 3 जिसके अंदर है 40। तो ये हमें क्या दिखा देगा, ये वाला पर्टिकुलर प्रिंट है डिस्प्ले करेंगे 40। टॉप का वैल्यू -1 करेंगे मतलब 3 - 1 ये हो गया 2। फिर ये लूप अगर हमें रन करना है, फिर से हमने ये फंक्शन रन किया, स्टैक अभी भी अंडरफ्लो कंडीशन में गया नहीं। ये जो प्रिंटफ है ये अभी पॉइंट किसको करे, मतलब क्या डिस्प्ले करेंगे, स्टैक। अभी नेक्स्ट टाइम जब रन होगा तो क्या वैल्यू डिस्प्ले करेगा कोई बोल सकेंगे? Yeah, reply students. कोई तो रिप्लाई करो। स्टूडेंट और ध्रुवज्योति ने वो उसमें 30 किया है 30 30 देख लेंगे। ओके, तो अभी ये 30 डिस्प्ले होने के बाद फिर ऑन करेंगे, फिर इंडेक्स का वैल्यू डिक्रीज होंगे, तो टॉप नेक्स्ट टाइम पॉइंट करेगा 1 पे। ये जो प्रोसेस है ये हमारा था पॉप। तो मैं अभी ये प्रोग्राम रन कर रही हूँ, आप लोग देखो। पुश पॉप डिस्प्ले क्विक, तो हम लोग पुश कर रहे हैं, तो हम सर्च डाल रहे 1, इसमें हम पहले डाल रहे हैं सपोज 10, एंटर कर दिए, फिर से पुश करेंगे 20, फिर से पुश कर रहे हैं सपोज 30। तभी हमें इसको डिस्प्ले करना है, तो हम 3 मैंने प्रेस किया, तो हमारा स्टैक एलिमेंट क्या है 10, 20, 30। अभी अगर हम पॉप करें तो हम 2 प्रेस कर रहे हैं, हमारा पॉप हो गया, 30 पॉप हो गए। तो अभी हमारा डिस्प्ले करते हैं स्टैक, फिर से डिस्प्ले करने पे स्टैक में है अभी एलिमेंट 10 एंड 20। तो इस तरीके से पुश एंड पॉप ऑपरेशन स्टैक के अंदर होगा। तो हम लोगों ने देखा स्टैक के ये ऑपरेशन। अभी ये जो स्टैक ऑपरेशन है इसके थ्रू हमारे जो स्ट्रिंग है इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लेटर्स हम बैकवर्ड फॉर्म मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप लोगों को शायद मिला भी होगा इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, तो उस ऑपरेशन के लिए भी स्टैक यूज किया जाता है। मैं हाँ, तो मैं अभी क्यू में आ रही हूँ। क्यू में लगे ही हो, बैंक में हमें क्यू में लगना पड़ता है, जो पहले आ जाता है वही पहले सर्विस उसको मिलते हैं। हमारे कंप्यूटर में क्यू कहाँ यूज होता है, कोई देखा है तुम लोगों ने, कभी ध्यान दिया है क्यू कहाँ पे यूज होता है कंप्यूटर में? प्रिंटर। यस, प्रिंटर। तो अगर हम मल्टीपल प्रिंट दे रहे हैं तो क्यू के थ्रू ही मतलब 1 by 1 भी प्रिंट होंगे। जैसे अगर हमने मेल भी किया हुआ है, मेल भी हमारा क्यू में ही जाता है। आप लोगों ने नेटवर्क डिवाइसेस देखा है? नेटवर्क डिवाइस देखा है आप लोगों ने, राउटर, स्विच, ऐसा कुछ Yes, ma'am. देखे हैं? तो वो भी क्यू के हिसाब से ही काम करेंगे। तो
अभी ये जो क्यू है ये भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही है, इसमें लेकिन दो एंड ओपन रहते हैं और दोनों एंड ही फंक्शन मतलब एक इंसर्ट करने के लिए और एक डिलीट करने के लिए काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, जो क्यू जिस प्रोसेस में काम प्रिंसिपल यूज करते हैं वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले तुम जाओगे तो तुम्हारा सर्विस पहले तुमको मिलेगा। अभी या एलिमेंट अगर हम क्यू में इंसर्ट करें तो एन क्यू बोलेंगे और डी क्यू बोलेंगे जब अगर हम उसको। सो अभी ये जो मैंने डायग्राम रखा है, सपोज हमने पहले डाला है 10 30 ऐसे इस साइड से ये इंसर्ट हो रहा है और जो पहले इंसर्ट हुआ है वो पहले डिलीट भी हो जाएंगे। स्टैक में हमने एक वेरिएबल देखा था टॉप, और यहाँ पे हमें दो वेरिएबल यूज करना पड़ रहा है, फ्रंट एंड रेयर। नाम तुम लोग ये जो नेम है ना, वेरिएबल नेम जो भी मर्जी वही दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाम हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर यूज किया है। तो अभी क्यू कैसे काम करते हैं, तो क्यू में जब एलिमेंट डालते हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं फ्रंट वेरिएबल के थ्रू, और एलिमेंट जब हमारा डिलीट होगा, मतलब लास्ट एलिमेंट जो सॉरी इंसर्ट डिलीट नहीं बोल रहे, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को हम वेरिएबल के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे भी मैंने एक एरे लिया हुआ है, एरे का साइज है 4। इसमें भी हम लोग इंसर्ट करने से पहले देखेंगे क्या क्यू ऑलरेडी फुल है। अगर क्यू फुल नहीं है, मतलब अभी तक इसमें कोई एलिमेंट है नहीं या और स्पेस है, तो वो चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्रंट और रेयर बोल के दो वेरिएबल हमने लिया है, दोनों का ही वैल्यू -1 रखा है। अभी ये जो तुम्हारा वेरिएबल है इसके थ्रू आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है। हम लोग एक एलिमेंट या वैल्यू डालना, डाटा डालना चाहते हैं क्यू के अंदर, तो ये इंसर्ट करने से पहले हम लोग फ्रंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 के थ्रू। कॉन्सेप्ट देखो, पहले ये हमारा था एम्प्टी, डाटा इंसर्ट किया हमने, तो अभी एक ही एलिमेंट है पूरा क्यू के अंदर और दोनों वेरिएबल इसी क्यू के इस इंडेक्स को ही है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। अभी हम इस क्यू के पहला एलिमेंट कौन हो गया, 10। नेक्स्ट कोई एलिमेंट डालना है, रेयर को क्या करूंगी, प्लस कर दूंगी, तो ये रेयर प्लस हो गया, 1 आ गया। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है, डाल रहे हैं वैल्यू सपोज 20। इसी तरह जब हम क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो हम इस रेयर को प्लस करते करते जाएंगे। जैसे कि टॉप हमने प्लस करते करते गए, हम लोग रेयर प्लस करते जाएंगे और उसके साथ वैल्यूज इंसर्ट होता जाएगा। जैसे ये पहले एम्प्टी क्यू था, उसमें हमने इंडेक्स नंबर 0 में 10 इंसर्ट किया। रेयर एंड फ्रंट दोनों ही इस एरे के 0 इंडेक्स के 10 वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने फिर और एलिमेंट डाल दिया 20 की पॉइंट कर रहे हैं 1 को, वैसे ही और एक डालेंगे 30, वो पॉइंट कर रेयर फिर से +1 हो जाएगा, फिर रेयर प्लस होगा और इसमें डाल जाए इंसर्ट होगा क्या 40। तो इस तरीके से हमारा क्यू में एलिमेंट इंसर्ट होते हैं।
अभी जैसे इंसर्ट हुए वैसे ही डिलीट भी होंगे। अभी डिलीट कौन सा एलिमेंट होगा पहले, कोई बताएगा? Front. 10 फ्रंट मतलब 20 सॉरी 10। तो अभी हमें जब डिलीट करना होगा हम फ्रंट को प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अभी फ्रंट प्लस करेंगे तो ये फ्रंट हमको पॉइंट करके देगा कौन सा 20 को, तो ये 10 चला गया। फिर फ्रंट को प्लस किया तो ये फ्रंट पॉइंट कर रहा है 30 को, फिर ये चला गया। फिर हमने 40 डाला, उसको हमने फिर फ्रंट को प्लस कर दिया तो ये एम्प्टी हो गए। तो अभी इस तरीके से फ्रंट प्लस करने से एलिमेंट होता है डिलीट, करने से एलिमेंट होता है इंसर्ट। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कभी ऐसा हो सकता है क्या कि हमारा जो ये फ्रंट है इसका वैल्यू रेयर से ज्यादा हो सकता है क्या? No, I guess. नो। ठीक है, हम एक लिख लेते हैं। अभी मेरा एक क्यू है, इसमें 1 2 ये हमारा 0 इंडेक्स, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसमें 10, इसमें 20 और इसमें 36 और इसमें कुछ नहीं है। अभी यहाँ तक हमारा रेयर है और ये हमारा फ्रंट हो गया। अभी हम फ्रंट को +1 कर देने से ये हट जाएगा, फ्रंट इसको पॉइंट करेगा। ये हमारा सॉरी, तो फ्रंट अभी इसको पॉइंट कर रहा है। फिर से अगर मैं फ्रंट को +1 कर दूं तो फ्रंट और रेयर दोनों ही इसको पॉइंट करेगा और ये एलिमेंट हो गया डिलीट, ये हो गया डिलीट। अभी मैं अगर फ्रंट को प्लस करती हूँ, फ्रंट कहाँ चला जाएगा? थ्री में, और ये हो जाएगा क्या डिलीट। रेयर लेकिन इसी में ही है, सिर्फ फ्रंट हो गया है क्या प्लस। तो अभी फ्रंट का वैल्यू रेयर से ज्यादा हुआ है नहीं, फ्रंट इज ग्रेटर देन। ये कंडीशन भी हमें चेक करना है। अगर हमारे क्यू रेयर से ज्यादा हुआ मतलब क्यू एम्प्टी है, क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है। फ्रंट और रेयर दोनों एक ही में है तो मतलब हमारे इसमें एक एलिमेंट तो है, अभी तक वो डिलीट हुआ नहीं। तो अभी हाँ, तो अभी हमारा ये हो गया क्या, एंटर योर चॉइस दिया हुआ है तो मैं इंसर्ट कर रही हूँ 1। तो अभी हम डाल रहे हैं 10, फिर 1 देते हैं, अब डाल रहे हैं 20, बाद फिर उसमें होगा 30 डिस्प्ले कर रहे हैं। तो 10 20 30 इसमें स्टोर है। तो अगर हम अभी डिलीट करना चाहे कर रहे तो हमारे यहाँ से पहले हमने डाला था 10 ही डिलीट हो जाएंगे। एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द क्यू इज, अभी हमारे क्यू को फिर डिस्प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी है 20 एंड 30। तो अभी हमारा क्यू जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक तो हो गया लीनियर क्यू जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, पोलर क्यू जिसमें क्या होगा फर्स्ट
इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों जॉइंट रहेंगे, मतलब ऐसे इंडेक्स 0, 1, 2, 3। तो ये होते हैं सर्कुलर क्यू। ये हो गया लीनियर क्यू। एक आपको मिलेंगे प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी के ऊपर बेस करके ये प्रोसेसिंग करेंगे। ये अगर सेम प्रायोरिटी रहा तो इसके अराइवल के ऊपर डिपेंड करके ये प्रोसेस करेंगे। और एक हो गया डी क्यू, जिसमें क्या होता है, दोनों एंड से ही इंसर्ट एंड डिलीट दोनों होंगे। जैसे कि पहले ही आप लोगों ने बताया ही है, प्रिंटर में भी अपना क्यू यूज हो रहा है प्रोसेसिंग के लिए। मेल में क्यू यूज होते हैं, स्विच एंड राउटर्स में होते हैं। आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको मिला हुआ है, कौन सा सेम में था मैं भूल गई, तो उसमें भी है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएंगे उसी को ही पहले सर्व किया जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टैक एंड क्यू। और किसी को कुछ क्वेरी करना है तो कर सकते हैं।